اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدْ رَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے جنوں کو، انسانوں کو اپنی معرفت، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اسی کی عبادت کرنا ہے اور انہی کی مدد سے کرنا ہے۔ لیکن کب تک کرنا ہے عبادت؟ جو میں آپ کے سامنے آیت کا تلاوت کیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ تو یقینی چیز ہے کیا؟ کچھ لوگ تعجب میں پڑے تھے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا نہیں ہے۔ اس نے اینٹ، سونا، چاندی، مکان بنا کر جنت کا نمونہ کھڑا کیا اور ایک دو روز نہیں، برس کی محنت سے اس نے سب کچھ کیا، لیکن اس کو وہ گھر دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ ایک قدم گھوڑے کے رکاب پر اور ایک قدم دہلیز پر، آدھا سورج ڈوبا ہوا اور آدھا سورج نکلا ہوا۔ جو انہیں یہ تھا کہ ہم جب رات بھی نہیں ہوگا، دن بھی نہیں ہوگا، میں گھر پر بھی نہیں ہوں گا، باہر بھی نہیں رہوں گا، میں سفر میں بھی نہیں رہوں گا، گھر میں بھی نہیں رہوں گا، اس کا مطلب ہے کہ میں اس دنیا سے جانے والا نہیں ہوں۔ تو اللہ پاک نے اس کو یقین دلایا کہ یہ موت یقینی چیز ہے، دیکھ لو، یقین کر لو کہ تم گھر سے باہر بھی نہیں ہو، گھر کے اندر میں بھی نہیں ہو، تم سفر میں بھی نہیں ہو، گھر میں بھی نہیں ہو اور دن میں بھی نہیں ہو اور رات میں بھی نہیں ہو۔ تو یقینی چیز موت ہے جو آ کر رہتا ہے۔ پوری کائنات کے لوگ، جتنے لوگ ہیں، جتنے انسان اور جنوں میں سے ہر ایک کو اپنے وقت پر موت آنا ہے اور جگہ پر موت آنا ہے۔ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس جگہ پر موت آئے گی۔ اسی لیے جب عمر زیادہ ہوتی ہے تو طول عمل کی بیماری اس میں لگ جاتی ہے۔ لمبی امیدیں باندھتا ہے کہ میں یہ کارخانہ کھڑا کر لوں گا، یہ کاروبار بنا لوں گا اور بیٹے کے لیے یہ کر لوں گا اور بیٹیوں کے لیے ایسا کر لوں گا اور ساتھیوں کے لیے یہ انتظام کر لوں گا، تب اس کے بعد مروں گا۔ تو موت کے دہانے میں پہنچ کر لمبی لمبی امیدوں کا بیماری بڑھاپے میں آتا ہے۔ تو اسی لیے بتایا کہ لمبی امید مت کرو۔ ایسا ہے کہ تم ملک الموت کا سر پر ہاتھ ہے اور ایک ہاتھ امید کا ہے جو اتنا دور چلا گیا۔ تو موت سر پر منڈلا رہا ہے اور ہاتھ اتنا دور بڑھا رہا ہے کہ جیسے ساری دنیا سمیٹ کے یہ اپنے لیے لے آئے گا۔ تو یہ مثال سے سمجھایا کہ موت سر پر ہے اور تم امید کا لمبی ہاتھ لگا رہے ہو، اسی لیے امید کو سمیٹو۔ تو جہاں تک غذا کا معاملہ ہے، بتایا کہ کتنا دن کے لیے انسان مال جمع کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات میں سے سوا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے جن کا یقین کا اعلیٰ درجہ ملا ہوا تھا، تمام ازواج مطہرات کو سال بھر کے کھانے کا خرچ دے دیا کرتے تھے۔ تو اس پتہ چلا کہ غذا کے معاملے میں، کھانے کے معاملے میں سال بھر کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اور اس سے بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ زکوٰۃ 9 مہینے میں نہیں ہے، 10 مہینے میں نہیں ہے، 11 مہینے میں نہیں ہے، بلکہ پورا سال گھوم جائے اور پھر جو بچا ہو اس میں لگے گا زکوٰۃ۔ تو پتہ چلا کہ سال بھر تک تو کھانے پینے کی چیز تھی اور سال بھر کھا پی کر کے جو نصاب کے مطابق آپ کے پاس بچ گیا ہے وہ غذا نہیں ہے، وہ مال ہے، اس میں آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ تو بہرحال انتظامات اگر ہو تو سال بھر کا اشارہ تو ملتا ہے، لیکن زندگی کی لمبی امید کس کو کہیں گے؟ کس جگہ سے آگے بڑھے گا سوچ جو اس کو لمبی امید کہیں گے؟ تو کہتے ہیں قرآن میں ہی لکھا ہے کہ ماذا تکسب غدا، آپ کل کیا کام کریں گی یہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔
किसी को भी मालूम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें मालूम नहीं और किसी और को मालूम है तो पता कर लेंगे। तो ये चीज़ के पूरी कायनात में कल कौन आदमी क्या काम करेगा मालूम नहीं है। तो कल के बारे में प्लान रखना, इसी का नाम है लंबी उम्मीद। यहीं से लंबाई शुरू होती है, चाहे वो हफ्ता भर का हो, 5 साल प्रोग्राम हो, 10 साल प्रोग्राम हो, ये सब लंबी उम्मीदें हैं। तो करने के लिए आज का दिन है, इंसान को आखिरत की तैयारी करनी चाहिए और कल पर नहीं डालना चाहिए। इसीलिए कहा कि कल करोगे तो आज करो, और आज जो करोगे वो अभी करो, और जब वक्त निकल गया तो फिर कब करोगे। तो इसीलिए जो कल पर शैतान डालता है। जब इंसान कुछ करने पर अच्छी चीज़ आता है तो शैतान कहता है जब आपको करना ही है ना तो कल जुम्मा है, जुम्मा से शुरू कर लेंगे, कल फलाना चीज़ है कल से शुरू कर लेंगे। इस तरह हर अच्छे काम को कल पर डाल करके बेकल करके रख देता है। ये काम तो शैतान का है। और जो करना चाहता है तो फ़ौरन शुरू करता है, अल्लाह उसमें कामयाबी अता करता है, यहाँ तक कि कामयाब हो जाता है। तो इंसान तूले अमल से, लंबी उम्मीदों से बचे, और जब मौत को सर पर समझे कि मौत हमारे सामने। मलकुल मौत समझने की क्या बात होती है। मलकुल मौत हर इंसान के साथ में जो कितने बार आकर के देख लेता है 24 घंटे में कि यह इबादत में लगा है, गफलत में लगा है, मासियत में लगा है। तो ज़िंदगी का सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे यकीनी चीज़ वो मौत है, जिसके बारे में किसी को भी शक नहीं है। अब आप देख लीजिए कि मक्के में, मदीने में इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा वहाँ थे, और फिर उसके बाद मौत करबला में लिखा था तो वहाँ पर जाकर के मौत हुई। अब जितनी दास्तानें बना लो, लेकिन मौत जिस जगह थी वहीं पर मलकुल मौत ने रूह को कब्ज किया। और जिसका भी कब्ज किया है, अगर वो फिरौन वक्त है तो समुंदर के बीच में उसका रूह कब्ज किया गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 साल तक वजह समझिए मक्के में, जहाँ आप पैदा हुए वहाँ ज़िंदगी गुजारे, दिन की मेहनत क्या, लेकिन फिर आप लास्ट में 10 साल के लिए मदीना तशरीफ़ लाए, और यहीं आपका हमेशा के लिए जगह बन गई, यहाँ तक कि क़यामत के मैदान में उठेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपके साथ में अबू बकर सिद्दीक़, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु होंगे। तो यकीनी चीज़ है कि किस जगह आपकी किस वक्त इस दुनिया से जाना होगा। और ये रूह और बदन का जो कनेक्शन है जो आपस में मिला हुआ है, इस रूह का कनेक्शन ख़त्म करेंगे, निकालेंगे। वो मलकुल मौत को पावर दिया गया है, लेकिन पावर का यूज वही सही भी कर सकता है जब उसका टाइम बगैर टाइम के मलकुल मौत भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कहा 2 रोज़ हज़र कर दर मर्ग सजा ने, रोज़े के कज़ा बासत रोज़े के कज़ा ने। 2 दिन में डरने की चीज़ नहीं। एक तो यह कि जिस दिन आपकी मौत नहीं है तो फिर क्यों डरते हैं, परेशान होते हैं, मौत ही नहीं। और जिस दिन मौत है तो फिर आपको किसी भी इंतजाम काम नहीं देगा। वह कुन तुम फिर बुरुजिम मुशय्यदा, महफूज किले में हो तब भी हो। इसलिए काते लज़्ज़ात चीज़ नफ्स, जब मौत का मुराकबा है, इंसान मौत का ध्यान करे। इस दुनिया से कैसे कैसे लोग उठ रहे हैं, जिनकी हुकूमतें वो भी उठ रहे हैं, जो सहजोर हैं वो भी उठ रहे हैं, कारोबार करने वाले उठ रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लगाने वाले जा रहे हैं, मजदूर भी जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, जवान जा रहे हैं, औरतें जा रही हैं, सारे आखिरत की तरफ जा चल पड़े हैं। तो ये सारा निज़ाम जो मौत और ये जो ज़िंदगी है, ये असली ज़िंदगी नहीं है, ये तो आजमाइश की ज़िंदगी है। जिस ज़िंदगी को हम इसी दुनिया को बनाना चाह रहे हैं, जिसको ज़िंदगी समझ रहे हैं, ये दुनिया धोखे का घर है और ज़िंदगी एक धोखा है। इसको अल्लाह और रसूल के मुताबिक अगर ज़िंदगी को गुजारा तो कामयाब होगा, और अगर नहीं गुजारा तो नाकाम होगा। तो इसलिए जो ये ज़िंदगी आजमाइश लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मौत और हयात आजमाइश की चीज़ है, न कि राहत की चीज़ है। इसीलिए जो है ये दुनिया धोखे की जगह,
आखिरत की जो ज़िंदगी है लायल हैवान, हाँ वो ज़िंदगी है। तो आखिरत को बनाने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप सही में हैं। और आप जो चाहते हैं अल्लाह के सिवा, जो गैरुल्लाह की चाहत है, मरने से पहले की चीज़ों की चाहत है, इसी का नाम कमजोरी है, इसी का नाम गरज है, इसी का नाम तमन्ना है, इसी का नाम धोखा है। तो जिन चीज़ों का आप चाहत कर रहे हैं, जायज़ चीज़ है, अच्छी चीज़ है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन यकीन नहीं है कि आपको वो सामान भी, वो चीज़ भी, कामयाबी भी मिल जाए। अल्लाह चाहेगा तो मिलेगा और नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगा। इसी का नाम है तौफीक। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अल्लाह तौफीक देगा, मुआफ़िक हो जाएगा। आप जो चाहते हैं वो अल्लाह भी चाहेगा तो मुआफ़िक हो गया, एक जैसा हो गया, तो दुनिया में वजूद में आ जाएगा। और बता मा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। आपके अंदर जो चाहत पैदा होती है वो भी अल्लाह के चाहत के वजह से आपके अंदर चाहत है। यानी आज खुद चाहत का पैदावार भी नहीं है। इंसानों के अंदर जिस चीज़ का भी चाहत पैदा हो रहा है अल्लाह की तरफ से चाहत होने के बाद होता है, लेकिन पूरा करना अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत अल्लाह के साथ देने से होता है। इसलिए यकीन अल्लाह पर रखना चाहिए, उसको राज़ी करने के लिए करना चाहिए, उससे माफ़ी मांगना चाहिए जो इंसान गलत कर रहा है। और लंबी लंबी उम्मीदें बांधना, कल पर काम को टालते रहना, खुद को बेकार ज़िंदगी गुजारना और काहली की और गफलत की ज़िंदगी गुजारना, ये नाकामी की दलील है। और जो भी कामयाब हुए हैं वह हमेशा की कामयाबी हुई है, उसने जो है गफलत से निकला है और मेहनत को अपनाया और तवक्कुल को अपनाया है और सब्र को अपनाया है और मुसलसल मेहनत किया, अल्लाह ने उसको कामयाबी अता किया। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और कामयाबी से हमकिनार फरमाए। आखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।